अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंटेंट्स ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द थाई। हमने पढ़ा था सुपरफिशियल फेशिया की दो लेयर्स हैं, एक सुपरफिशियल फैटी लेयर, सेकेंड इज़ द डीप मेम्ब्रेनस लेयर। द कंटेंट्स ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया आर प्रेजेंट between these two layers, and the contents of the fascia are cutaneous nerves, vessels, that means arteries and veins, superficial inguinal lymph nodes or the lymph nodes, subcutaneous bursas in the skin or up to the knee, and we will discuss all these one by one. First, we will discuss superficial inguinal lymph nodes. As we had previously discussed, superficial inguinal lymph nodes are grouped into a horizontal group and a vertical group. Horizontal group is further divided into two parts. Horizontal is the upper, so that is why it is known as the upper horizontal group. Upper horizontal group is further divided into two parts: the medial, which is lying medially, and the lateral upper group. Okay. And the lower vertical group is located vertically, that is why it is known as the lower vertical group. The upper medial group drains the genitalia, lymph from the genitalia, and the upper lateral group, as we had previously discussed, drains the gluteal region, also the anterior abdominal wall portion of the infraumbilical part, that means below the umbilicus जो भी anterior abdominal wall का part है उसको ये lateral group drain करता है. medial group genitalia को drain करता है, lateral group the gluteal region and the infraabdominal part of the anterior abdominal wall, and the lower vertical group drains the whole of the lower limb. So next are the subcutaneous bursas. Subcutaneous bursas, that means the bursae present below the skin, are known as the subcutaneous bursa, and these are total 5 in numbers, or the 4 in numbers you can say. First is the suprapatellar bursa, prepatellar bursa, and the infrapatellar bursa, and the infrapatellar bursas are two: subcutaneous infrapatellar and deep infrapatellar. So you have to first look at this diagram. This is femur, tibia, and this is the quadricep muscle tendon, patella, and this is the ligamentum patelli. So we have to just understand the bursa is present over here are the subcutaneous bursa, because lying below the skin, that is why subcutaneous bursas. This bursa, this is present superiorly to the patella, that is why it is known as suprapatellar bursa. So you have to remember the bursa present below the quadricep muscle but above to the superior to the patella is the suprapatellar bursa, and in front, that means before the patella, is the prepatellar bursa, and this bursa is also before the patella and in front of the ligamentum patelli. This bursa is present in front of the patella, that means before the patella, and in front of the ligamentum patelli, that is why this is known as the pre means before, prepatellar bursa. Next are the infrapatellar bursa. Infra, that means inferior. So these two bursas are inferior to the patella, that is why these bursas are known as infrapatellar bursa. One is deep to the quadriceps or the ligamentum patelli tendon, that is why it is known as deep infrapatellar bursa, and one is in front of the ligamentum patelli or over the tibial tuberosity, that is why or just below the skin and superficial fascia, that is why it is known as the subcutaneous infrapatellar bursa. So there are total 4 in number: suprapatellar bursa, prepatellar bursa, infrapatellar bursae are 2, subcutaneous infrapatellar bursa in front of the tibial tuberosity, and subcutaneous deep infrapatellar bursa, which is deep to the ligamentum patelli. So next we have to discuss cutaneous nerves.
before we go on to the cutaneous nerves, you have to just understand what is the lumbar plexus. Lumbar plexus, that means lumbar plexus is formed by the lumbar nerves, and there are 5 in number: L1, L2, L3, L4 and 5. These nerves, as the roots form trunk divisions, anterior and posterior divisions, and these are the basically divisions of the lumbar nerves, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन. जो मैंने ब्लू से मार्क की है ये वाली, ये इंटीरियर डिवीजन्स है, और जिसमें मैंने रेड मार्किंग की है वो पोस्टीरियर डिवीजन का पार्ट है. ठीक है, तो जो लंबर फर्स्ट नर्व है L1, वो बेसिकली आगे 2 नर्व्स बनाती है. एक ये कम्युनिकेटिंग ब्रांच देगी. ठीक है, इसके अलावा ये 2 नर्व्स हैं. इसमें एक का नाम है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व. सेकंड इज़ इलियो इंग्वाइनल नर्व. ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाती है L2 में भी सेम इसी तरह आपके पास एक इंटीरियर डिवीजन है और एक पोस्टीरियर डिवीजन है. ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है, L2, L3, L4, इसकी जो इंटीरियर डिवीजन्स है ना, ये देखें, ये इंटीरियर डिवीजन्स है, ये मिलके एक नर्व बनाएंगे जिसका नाम है ऑब्चुरेटर नर्व. और जो पोस्टीरियर डिवीजन्स हैं L2, L3, L4 की, वो पोस्टीरियर डिवीजन्स मिलके फेमोरल नर्व्स बनाएंगे. इंटीरियर डिवीजन्स ऑब्चुरेटर नर्व बनाएंगे और पोस्टीरियर डिवीजन्स फेमोरल नर्व बनाएंगे या फेमोरल नर्व. इसके अलावा आपको पता है ये एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच है L1 की, और ये L2 से कुछ फाइबर्स आ रहे हैं, तो ये दोनों मिलके आप नर्व बनाते हैं विच इज़ द जेनिटोफेमोरल नर्व. और द फेमोरल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमोरल नर्व. तो यू कैन से जेनिटोफेमोरल नर्व बनाते हैं ये वाली नर्व जो है. ठीक है, अब इन सब की सप्लाई हम देखते हैं किस किस को सप्लाई करते हैं. फ़िलहाल आपने सिर्फ नर्व्स देखनी, कौन से नर्व रूट से कौन सी नर्व बनती है. इसके बाद आपको एक ये वाली नर्व नज़र आ रही होगी. L2 से पोस्टीरियर डिवीजन के कुछ फाइबर्स आ रहे हैं और L3 से पोस्टीरियर डिवीजन के कुछ फाइबर्स आ रहे हैं. ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बेसिकली लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. ठीक है, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. और इसके बाद लास्ट ये नीचे देखें तो ये L4 और L5 है. तो L4 और L5 के बाकी जो रिमेनिंग फाइबर्स हैं L4 के और L5 के, ये मिलके लंबोसेक्रल ट्रंक बनाते हैं, जो कि हमने सेक्रल प्लेक्सस में पढ़ा था, शैटिक नर्व बनाते हैं. ठीक है, तो ये लंबोसेक्रल ट्रंक बेसिकली शैटिक नर्व की फॉर्मेशन में टेक पार्ट करेगा. अब हमने इनकी सप्लाई देखनी है, ये क्या करती हैं और किन एरियाज़ को सप्लाई करती हैं. इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व का आपको पता है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक ग्लूटियर रीजन के क्वाड्रेंट को भी सप्लाई करती है. इसके अलावा ये सप्लाई करेगी जेनिटल एरिया के स्ट्रक्चर्स को भी. सेम इज़ फॉर द इलियो इंग्वाइनल नर्व, ये भी जेनिटल स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेगी. नेक्स्ट है आपके पास फेमोरल ब्रांच और द फेमोरल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमोरल नर्व. ये किसको सप्लाई करेगी, यहाँ पे आपकी एक फेमोरल ट्रायंगल बनती है. ठीक है, सार्टोरियस के बॉर्डर से, इसके अलावा इस साइड से, तो ये फेमोरल ट्रायंगल के एरिया की जो स्किन है उसको सप्लाई करेगी जेनिटोफेमोरल नर्व. इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई आपको याद है कि हाँ, हमने पढ़ा था ग्लूटियर रीजन के जो क्वाड्रेंट्स हैं, उसका जो लोअर लैटरल क्वाड्रेंट है उसको लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई सप्लाई करती है. और इसके अलावा साथ में मैंने बताया था लैटरल पार्ट ऑफ द थाई को भी, यानी लैटरल साइड ऑफ द थाई को सप्लाई करती है. इसके अलावा 2 नर्व्स और हैं विच आर द इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, क्योंकि हमने पहले लैटरल पढ़ा है तो ये लैटरल थी. इसके बाद ये इंटरमीडिएट है और ये क्या है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. तो जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है ये बेसिकली लोअर 2/3 ऑफ द मीडियल पार्ट ऑफ थाई को सप्लाई करेगी, लोअर 2/3.
मीडियल साइड ऑफ द थाई। जो इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है वो जो सार्टोरियस, ये मैंने सार्टोरियस का बॉर्डर ड्रॉ किया है, तो जो सार्टोरियस का बॉर्डर के अलोंग जो स्किन है वो पूरी इस एरिया में ये पूरी एक स्ट्रिप के अलोंग सप्लाई करेगी। नेक्स्ट है सेफनस नर्व, और ये दोनों आपने याद रखना है, ये दोनों नर्व्स जो फेमरल नर्व देती है, ये दोनों ब्रांचेस क्यूटेनियस ब्रांचेस फेमरल नर्व देगी, और इसकी बेसिकली 2 डिवीजन्स में डिवाइड हो जाती है, फेमरल इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो ये दोनों इसकी इंटीरियर डिवीजन की ब्रांचेज हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास एक और नर्व विच इज़ द सेफनस नर्व। ये सेफनस नर्व भी फेमोरल नर्व भी देगी, ये वाली ब्रांच भी, लेकिन ये कहाँ से, इसकी पोस्टीरियर डिवीजन से आएगी, और ये किसको सप्लाई करती है, जो लेग, क्योंकि मैंने ये लेग ड्रॉ की हुई है, दैट मीन्स ये लेग की मीडियल साइड को सप्लाई करेगी, इंटीरियर पार्ट में एंट्रोलैटरल जो पार्ट है ना इसका, इसमें मीडियल साइड ऑफ द लेग को सप्लाई करेगी अप टू द फुट के भी मीडियल बॉर्डर पे सप्लाई करेगी टिल द बिग टो लेवल। ठीक है, तो ये सेफनस नर्व की क्यूटेनियस सप्लाई है, और ये सारी क्यूटेनियस सप्लाई है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास क्यूटेनियस आर्टरीज़। क्यूटेनियस आर्टरीज़ आपके पास टोटल 3 है, और ये सारी फेमोरल आर्टरीज से इनकी ब्रांचेज़ हैं। और आप अगर स्किन सुपरफिशियल फेशिया को रिमूव करें फैटी लेयर को, तो आपको ये तीनों नर्व्स तीनों आर्टरीज़ आपको नज़र आती हैं। इनके आपने नाम याद रखने हैं और किसको सप्लाई करती हैं वो आपने याद रखना है। द फर्स्ट वन इज़ द सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, superficial epigastric artery, superficial circumflex iliac artery. I am repeating: superficial external pudendal artery, superficial epigastric artery, superficial circumflex iliac artery. तो superficial external pudendal artery genital area को सप्लाई करेगी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इंफ्रा एम्ब्लाइकल पार्ट ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करेगी। द सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी, आपको याद है कि हमने पढ़ा था ट्रोकेंटेरिक एनॉस्मोसिस मेजर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के साथ बनाती है, तो ये उसके साथ एनॉस्मोसिस में पार्टिसिपेट करेगी ऑन द इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, तो ये आपकी क्यूटेनियस आर्टरीज़ हैं। अब ये तीनों आर्टरीज़ हैं ना, इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स भी होंगी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक वेन। ये तीनों वेन्स ड्रेन करती हैं इनटू द लॉन्ग सेफनस वेन। सो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द लॉन्ग सेफनस वेन। लॉन्ग सेफनस वेन आपको याद है हमने हैंड पे पढ़ा था, डॉर्सम ऑफ हैंड पे डॉर्सल वीनस आर्च बनती है। इसी तरह डॉर्सम ऑफ फुट के ऊपर भी एक वीनस आर्च बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, डॉर्सल वीनस आर्च। तो उसके मीडियल एंड से ये वेन बनती है और ये इस तरह अपवर्ड रन करती है, अपवर्ड रन करेगी और फिर ये बैकवर्ड चली जाएगी अप टू द नी के पीछे से पास करेगी और उसके बाद फिर फ्रंट ऑफ थाई में ये अपीयर होगी हेयर, लॉन्ग सेफनस वेन। ठीक है, लॉन्ग सेफनस। और अल्टीमेटली यहाँ पे हम सेफनस ओपनिंग, कल हम डीप फेशिया पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये इस सेफनस ओपनिंग के लेवल पे यहाँ पे इसके फेशिया को पियर्स करके इसमें एंटर हो जाती है, इस सेफनस ओपनिंग के अंदर एंटर हो जाएगी। और वहाँ एंटर होने से पहले 3 वेन्स आएंगी इसके अंदर, 3 ट्राइब्यूटरीज इसमें ड्रेन होंगी, और वो कौन सी हैं, इन्हीं आर्टरीज़ की कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक वेन। ठीक है, तो ये आइलिक इलम वाली साइड से आ रही है तो सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक वेन, ये एब्डोमिनल साइड से आ रही है तो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, एंड ये जेनिटल साइड से, इधर जेनिटल स्ट्रक्चर्स हैं तो यहाँ से सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन। तो ये तीनों इसके अंदर ड्रेन हो जाएंगी और अल्टीमेटली ये सेफनस ओपनिंग के अंदर चली जाएगी।